So in the last class we have discussed about the big O notations. Okay, so this is the definition. Fn is equal to OGN. So already you know that is the, if the growth of the GN is will be greater or equal to the growth of the Fn, then you can say this is the phenomena. Okay, so mathematically we have seen this thing, means Fn is less than equal to Cgn, and how can we identify? I have taken two examples, 3n plus 3 and after that n square plus 2, and after that I have given to the one example to you, that is the f1 is 2n and f2n is equal to 20n. Then you have realized that the both of the function is have the same growth, means if you are doubling the input, then the output is also doubling in the both of the cases, so you can say that is the growth is same. So first thing you learned from this thing, means you can say, sir, I know that is the thing only, means we will search or we will see about only the growth of the function. Okay, we will not worry about the function what is saying, what is the exact value, but we will see only the growth of the function. Okay, so this is the thing in the algorithm, always you will see the growth of the function, you will not directly go to the totally or absolute mathematics. That's why I am saying this is the asymptotic analysis, because we are not going for the exact solution, we are approximation the things. Okay, so that's why I am saying, just wait, I have to close this thing again, I have to start because draw thing is not coming. Okay, some lecture 3 is there. Okay, this is not your lecture 3, wait. Okay. Okay, so now I am starting. So this thing is clear to you till now? Everything is clear to you? Just tell me yes or no, otherwise I will repeat this thing. Yes or no? सर कोई एक छोटा सा एग्जांपल और देके समझा दीजिएगा। और देके समझे? एग्जांपल अभी बहुत लेने वाला हूँ, चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन स्टार्ट one more example, third example we can start. Okay, so you can see, just you will tell me first function I am taking, that is the fn is equal to, so my screen is visible to you? Yes sir. Log n. Okay, and second I am saying the second function is f2n. Okay, that is 2n. Now you will tell me which function is what is the growth, means the which function has the more growth. Okay, so I am asking which function has more growth, because we will worry about the only the growth of the function. So I am asking which function have the more growth. So you will analyze. log के बारे में आप लोग जानते हो, what is the phenomena of log? log अभी मान लो base 2 है, so I am taking the base 2 in this. Okay, so base 2 log n. So just calculate this thing or tell me which function has the more growth. ग्रोथ तो फिर सेम ही रहेगा, दोनों n पे डिपेंडेंट है। So first answer is the same. Second, any answers? So answers from your side. So I am writing. So if you are thinking, sir, that is n, here is that is n, so I can realize that the answer is same, means growth will be same. So other student, what is your observation? Sir, I think the second function will have more growth. Yeah, second means if I so you are saying, sir, f2n has the more growth. Okay. Yes, And क्योंकि log वाला नेगेटिव में चला जाएगा. ओके, लॉग वाला नेगेटिव में चला जाएगा, कुछ ऐसा है. बट लॉग हम लोग एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो हम लोग नेगेटिव की बात ही नहीं करते. एनी हाउ, सो अदर लॉजिक और सोच सकते हो, और यू कैन गो फिर दिस फिनोमिना ना. आई हैव टेकन, मैंने अभी तक जो सिखाया है उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ. सो यू कैन एनालाइज दिस थिंग, मीन्स यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन एंड यू कैन रियलाइज दिस थिंग. ओके, सो अदर आंसर, एनी अदर आंसर फ्रॉम दिस, इन दोनों के अलावा? Any other answer you can tell me? Any answer? So this is your, I am not judging you on the basis of this thing, so you can give the answer. One student given, two student given this answer. Other student can saying, sir हमें तो पता ही नहीं क्या कहानी आप चला रहे हो, I don't care for this, कि कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो मुझे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, let's see.
ये दो आंसर है, तो वी कैन चेक. सो व्हाट आई एम डूइंग इन द लास्ट क्वेश्चन आल्सो, आई एम पुटिंग सम n वैल्यू, and the first function is f1 n and second function is f2 n. So what I am doing, I am putting some value. So what I am doing here, I just put 1. So what is the value of log n? Or you can start not from 1, I am putting 2 because this is the base 2, that will be easier for you. So you can put start, you can start from 2, 2 4 8, you can put here 16, like this only. Okay, 32, whatever you want to put. Okay, so what is the value of log 2 base 2? What is the value of this? So you know the value of this? Hello, please tell me, am I audible? Yes, sir. Okay, so tell me the value of this, please reply. Yeah, log 10, log a base a, what is the value of this? If the base and the value is same here, then what is the value? Please don't say कि सर ये भी नहीं पता. Anyways, अगर नहीं भी पता तो remember this thing. If the base and this thing is equal, then the value will be 1 always. The value will be 1. Okay, this is okay to you? Yes or no? Yes, sir. Okay, so the value will be 1 for this. And what is the value of this? This will be 4. Is it okay? 2 and 2, 2 multiplied 2, that is 4. Yes. Okay, so now again I am putting here 4. Okay, instead of 1, when I am putting here 4, what should be the value of this? So you can write that log 2 square 2. Okay, एंड जब लॉग हमारा होता है तो स्क्वायर आपका जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है. ठीक है, दैट इज लॉग 2 base 2. अगेन you can write sir 2 multiply 1, that will be equal to 2. ओके, और यहाँ से इतना ध्यान रखना, देखो जिंदगी में लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, नीचे लाने की कोशिश करते हैं. किसी भी आदमी को जिंदगी में लोग नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और मैथमेटिक्स में लॉग हमेशा लेके नीचे आता है पावर को. नॉर्मल आप देखोगे अगर पावर चढ़ाओगे तो वैल्यू बहुत इंक्रीज करती है. 2 की पावर 8 कर दूंगा तो बहुत वैल्यू इंक्रीज करती है. बट इसके आगे अगर मैं लॉग लगा दूं तो क्या क्या करेगा, 8 आगे आ जाएगा और ये log 2 1 हो जाएगा, वैल्यू 8 आ जाएगी. तो जिंदगी में लोग और मैथमेटिक्स में लॉग हमेशा नीचे लाता है. तो पावर को अगर नीचे लाना है तो आप लॉग लगा दीजिए. सो लॉग विल बी कम हियर. सो 2 log 2, दैट विल बी योर आंसर. सो आंसर विल बी 2 हियर. फॉर 4 द आंसर विल बी 2. इज इट ओके? अब याद रहेगा? सर बहुत अच्छा Yes, एग्जाम. थैंक यू यार. तो वही है, जिंदगी में लोग नीचे लाने की कोशिश करते हैं और मैथमेटिक्स में लॉग नीचे लेके आता है. एनीवेज, चलो ये अगर समझ आ गया है तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? दैट इज 2 into 4, दैट इज 8. ओके, और यहाँ पे 8 है. 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 to the power 3. सो अगेन 3 विल बी कम हियर, and the log 2, this is the value 1. So here answer will be 3, and here the answer will be your 8 multiplied 2, that is the 16. Is it okay? Here you can write 5, here you can 4, here you can know that value is 5. 2 to the power 5, that will be 5. Okay, so the value here, that will be 32, and here that will be 64. So now you just now analyzing this thing. So I am removing this part. log का ये प्रॉपर्टी याद रहेगा आगे लाने का. ठीक है, पावर हमेशा नीचे आ जाती है. सो नाउ यू कैन रियलाइज, सर मैं जैसे जैसे मैं इनपुट को इंक्रीज कर रहा था, मैं इनपुट को इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा ग्रोथ किसकी ज़्यादा हो रही है? अगर मैं इसी को, मैंने हमेशा कहा कि यू विल रियलाइज द थिंग एट द n इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ओके, यहाँ तो स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं f1 की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है बट बहुत ही धीरे, और आपकी f2 की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है. इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो अगर इनफाइनाइट की तरफ मैं जाऊंगा, एट द टाइम ऑफ इनफाइनाइट ये 2n का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है log n की ग्रोथ से. सो यू कैन से दैट सर f2n का ग्रोथ आपका ज़्यादा है, f2n का ग्रोथ आपका ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का डायरेक्शन भी नहीं आएगा. f1n से आपका f2n का ग्रोथ ज़्यादा है. सो यू कैन राइट दिस थिंग ना, f1n is equal to OF
F2N, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ग्रोथ जिसका ज़्यादा होगा उसके आगे O लगा देंगे, ठीक है। तो बिग ऑफ O कौन हो गया? F2N आपका बिग ऑफ O हो गया FN का। तो दिस प्रॉपर्टी विल बी राइट। सो हियर यू कैन से सर, हमेशा हमेशा याद रखो दैट अगर लॉग किसी के आगे लगा हुआ है तो उसका ग्रोथ कम हो गया होगा, ठीक है। तो ग्रोथ हमेशा किसका, ये क्वाड्रेटिक टाइप की जो इक्वेशन है एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, इनका ज़्यादा होगा अगर लॉग लगा हुआ है उन वाले फंक्शन से। तो ऑलवेज रिमेंबर, लॉग की ग्रोथ आपकी कम होगी और आपकी जो एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब इस तरीके के फंक्शन है उनकी ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी। इज इट ओके? दिस थिंग इज ओके टू यू? सर इसके पहले वाले एग्जांपल में अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि ओके, वेट, इसके पहले वाला एग्जांपल दिए था, हाँ ठीक है, 2 और 20n, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इनपुट जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे हम लोग, इनपुट में हमने क्या किया, 1, इसको डबल किया। तो देखो ये फंक्शन अपने में डबल हो रहा था, यहाँ पे ये फंक्शन भी अपने में डबल हो रहा था, जो पहले इनपुट था उससे ये डबल हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 20 था तो उसका आउटपुट यहाँ पे कितना डबल हो गया, 40 हो गया। यहाँ से ये जो भी पहले इनपुट था हमने जैसे ही इसको भी डबल किया फिर से इनपुट को, ये 8 हो गया, यहाँ पे 8 से 40 से 80 हो गया। तो देखो हर टाइम आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, डबल होती जा रही है। यहाँ पे डबल हुई ग्रोथ तो यहाँ भी डबल हो रही है, यहाँ डबल हुई ग्रोथ तो यहाँ भी आपकी ग्रोथ कितना हो रहा है, डबल होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ डबल हो रही थी, यहाँ पे भी डबल हो रही थी। ग्रोथ आपकी क्या है, सेम थी, कि ग्रोथ आपकी डबल होती जा रही थी, ठीक है। और रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, लॉग इज नॉट द कांस्टेंट थिंग। मैंने आपको ये भी कहा है कि कांस्टेंट की हम परवाह नहीं करते। तो यू कैन सी दिस थिंग कि सर मेरे पास एक लॉग है और एक एन है, मैं अभी 2 को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, कि 2 को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो यू कैन सी सर लॉग का हमेशा आपका क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ कि लॉग की ग्रोथ हमेशा एन की ग्रोथ से कम होगी, ठीक है। अगर इसके आगे लॉग लग गया तो ग्रोथ को उसने क्या किया, कम कर दिया, ठीक है। अगर एन की ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होगी। इससे लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, मैंने कंपैरिजन किसका कराया था आपका, एन, अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो आपके पास एन था और एन स्क्वायर था। तो इन दोनों में आपने क्या बताया, सर एन स्क्वायर की ग्रोथ देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, आपकी ऑर्डर 2 हो रहा है और यहाँ पे ऑर्डर 1 है, एन का ऑर्डर 1 है। तो हमेशा जो ऑर्डर अगर बढ़ता जाएगा तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एन स्क्वायर एन क्यूब, तो एन क्यूब की ग्रोथ ज़्यादा होगी एन स्क्वायर से, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप स्टार्ट कर सकते हो सर, लॉग एन से ग्रोथ ज़्यादा होगी एन की, एन से ग्रोथ ज़्यादा होगी एन स्क्वायर की, एन स्क्वायर से ग्रोथ ज़्यादा होगी, जो भी आप पावर बढ़ाते जाओ इस तरीके से पावर बढ़ाते जाओगे तो ग्रोथ के मामले में इस तरीके की सिचुएशन होगी। इज इट ओके? अभी समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बाद में कंफ्यूज लॉग कहाँ से इस क्वेश्चन में आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो इफ दिस पार्ट इज क्लियर नाउ यू कैन टेल मी। तो ये अभी क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन और लिया, अब मुझे एक आंसर आप बताओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ पहले आपसे। नाउ क्वेश्चन इज दिस दैट f1n is equal to, I am taking n, okay, and f2n I am creating one question, that is the 2n square, and f3n is equal to 3 log n, 30 log n कर देता हूँ, चलो 30 log n। नाउ यू कैन टेल मी what will be the series, मीन्स किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी सबसे, उसके बाद किसकी होगी और उसके बाद किसकी होगी। सो what will be the relation on the basis of growth of the function, so please answer, everyone please answer, or you can write your answer, means I am taking this is first, this is second, this is third, okay, or 1 2 3 you can say. So you can write your answer in your chat box, or you can give me the answer by your voice if your mic is working. Please tell me what will be the growth। अब आपको समझ में आना चाहिए, मैंने जो बताया अभी वही क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा से। प्लीज रिप्लाई, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर आप सीख गए हो तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और आप नहीं सीख पाए हो। प्लीज टेल मी।
व्हाट विल बी द फर्स्ट, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी ये बताओ, या सबसे कम किसकी होगी पहले ये बताओ, सबसे कम किसकी होगी? एन सर फर्स्ट वाले की सेम होगी, सेकंड की सबसे ज्यादा, थर्ड की सबसे कम। Yes, sir. Same answer. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर F3 की जो ग्रोथ है दैट इज लेस, सबसे कम इसकी है, उसके बाद आपकी ग्रोथ आएगी F2 की, और उसके बाद आपकी ग्रोथ आएगी F1 की, दैट इज योर आंसर। अदरवाइज सर ये चेंज भी हो सकता है सर, 30 से Sorry, मल्टीप्लाई होके सर वो चेंज भी हो सकता है सर। 30 से मल्टीप्लाई, अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ, डोंट वरी, आई एम राइटिंग हियर दिस थिंग, I am doing this, not 30, I am taking 60. Okay, and I am taking here I am taking, just remove this, this is 100 n. Okay, now you can tell me सर सबसे ज्यादा n स्क्वायर वाले की होगी सर, n स्क्वायर वाले की सबसे ज्यादा मींस F2 की सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू यू। और सर F3 की सबसे कम होगी। F3 की सबसे कम होगी। ओके, सबसे कम F3 की, और इन बिटवीन आपका क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा, ये है ना आंसर? सर मींस लेकिन दिस, सर अगर सर कुछ केस में सर ये फॉलो भी नहीं करेगा, अगर सर हम 1 के लिए देखें सर, तो 1 के लिए ये मैं F2 1000 कर देता हूँ, अच्छा ये 1000 कर दिया, 1010। सर तभी भी सर ये कुछ केस में वैलिड नहीं होगा सर, जैसे कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 ली दैट हमने। इज ओके, दैट इज ओके। देखो आई एम सेइंग, प्लीज रिमेंबर द थिंग, मैंने आप लोगों को क्या बताया, वी विल सी द ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, और कहाँ पे देख रहे होंगे? n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे यार, 0 1 2 3, ओके सर, ओके इनको सर, तो हम, इनकी तो औकात ही नहीं है, मीन्स इनको तो हम जज ही नहीं करते कि क्या हो रहा है इन पे, 0 1 2 3 4 5 पे क्या हो रहा है। हम कहाँ पे रियलाइज कर रहे हैं फंक्शन को? एट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, कि व्हाट विल बी द सिचुएशन। इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझाया हमेशा कि फर्स्ट वी विल रियलाइज द थिंग एट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल नॉट वरी अबाउट द कांस्टेंट, कि आपकी कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या है, ये इसके पीछे हम लोग नहीं भागते, वी आर नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज कांस्टेंट कुछ भी हो, वी आर नेग्लेक्टिंग द कांस्टेंट। ओके, ignore the constant first, if you will see the thing, so you can realize this thing, this is n, this is n square, this is log n, so already I have told you, मैंने आपको एग्जांपल से भी करके दिखाया log n, n और log n में क्या रिलेशन होता है, n और n स्क्वायर का रिलेशन में करा चुका हूं, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से सर log n की ग्रोथ कम होती है n से, और n की ग्रोथ कम होती है n स्क्वायर से, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से सर दैट यहाँ पे log n है, log n इस वाले फंक्शन में, सो यू कैन से सर F3 की ग्रोथ सबसे कम होगी, एंड आफ्टर दैट n स्क्वायर की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो F2 फंक्शन यहाँ आ जाएगा और F1 फंक्शन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि n है उसके अंदर। सो दिस विल बी द फिनोमिना, और दिस विल बी द सीरीज, इस टाइप से आपका चीजें होंगी। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके? हेलो, ये समझ आया? ओके, if this part is clear to you, ये चीजें आपको समझ आ गई हैं, then I am going for the second thing, this one more example. Now you just tell me, okay, so अब छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको मुझे हो सकता है समझाना पड़े, कुछ बच्चे करेंगे भी। So law, first I will write f1 n is equal to log n, and second I am taking f2 n is equal to log n, and third I am taking that is 3n square, चलो फोर्थ भी ले लेता हूँ, f4 is equal to 100 n plus 20 कर देता हूँ, and f5 I am taking f5 n is equal to 100 n plus log n। ओके, चलो ऐसे कर देता हूँ। नाउ यू विल रियलाइज द थिंग, चलो इस तरीके के फंक्शन आपके पास आ जाते हैं, देन सो अरेंज दीज फंक्शन इन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, ग्रोथ ऑफ द फंक्शन के हिसाब से आपको अरेंज करना है। सो व्हाट विल बी द फिनोमिना? सर सबसे पहले तो सर ये वाला होगा, पहले निकाल लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग निकाल लो कि सर ये सीरीज हो सकती है, ये सीरीज फर्स्ट आपका ये होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट पे कौन सा आना चाहिए, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, और फोर्थ पे कौन सा, एंड फिफ्थ पे कौन सा। ठीक है, आप ये बताओगे सर F1 यहाँ पे आना चाहिए, F2 यहाँ पे आना चाहिए, इस तरीके से। व्हाट विल बी योर आंसर? सभी बच्चे निकालो, उसके बाद वी विल रियलाइज कि क्या आंसर आना चाहिए।
ओके अगर इन क्वेश्चंस को एक बार समझ लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखते ही आप बता दिया करोगे कि अब एल्गोरिदम के टर्म से मैं बता दूंगा कि अगर किसी की log n है, अगर किसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है और किसी की n स्क्वायर आ रही है, तो आप देख के बता दोगे इन दोनों में कौन से ज़्यादा टाइम लेने वाली है, कौन सा कम टाइम लेने वाली है। ओके फर्स्ट पे आएगी F3, F3 चलो मैं आपके हिसाब से लिख देता हूँ अभी F3 सेकंड पे F4, F4 F5, F5 F1, F1 F2। F2 मीन्स ये आपने इंक्रीजिंग में बताया डिक्रीजिंग में बताया? आई थिंक डिक्रीजिंग बताया, इस तरीके से आपका है ना। ओके चलो मीन्स सबसे कम इसकी आएगी F2 की और F3 आपके हिसाब से सबसे ज्यादा है, ठीक है ये बताया ना आपने। सर मेरे हिसाब से सर F4 और F5 फ्लिप हो जाएगा सर। अच्छा आपके हिसाब से यहाँ पे F5 है और यहाँ पे F4 है, बाकी आपका सेम है, यस सर। ओके चलो लेट दिस विल बी वी विल चेक दिस थिंग। टू आंसर्स आए चलो। ये अगर वाला सही है क्योंकि Okay. ये इन्फिनिट अच्छा ओके सो यू आर अगेन मीन्स चलो वो कुछ कंफ्यूजन हुआ, देन यू आर आल्सो सेइंग मीन्स सर यही आंसर होना चाहिए है ना। ओके सो यू आर आल्सो सेइंग सर ये आंसर है। इसके अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा है तो मुझे बताओ, जस्ट टेल मी। हेलो प्लीज रिप्लाई हेलो। औरों की समझ में नहीं आ रहा या फिर आंसर नहीं देना चाहते? Oh, sir, we are here only. यही आना चाहिए। और भी बच्चे हैं, 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं। श्रुति, सुंदरम, ईशा, ईशान सॉरी, और आरुष, बताओ। बहुत कम बच्चे क्लास कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे सब बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक बार समझाइए, नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या ग्रोथ चला रहे हो, ठीक है। एनी हाउ अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे उसी हिसाब से बढ़ूँ। चलो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट मैं देखो जहाँ पे एक जैसे फंक्शन है उनको देखता हूँ कि सर यहाँ पे एक जैसे फंक्शन है लॉग वाले, यहाँ पे मैं समझ लूंगा अगर लॉग यहाँ दिया है सर लॉग एन, तो देखो यहाँ पे एन स्क्वायर है सर, अगर इतना तो मैं समझ रहा हूँ लॉग एन की एन स्क्वायर से कम होगी। यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा है कि नॉट कंसीडर द कांस्टेंट, कांस्टेंट को कंसीडर मत करो, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, इसको भी हटा सकता हूँ। यहाँ पे एन कुछ एन टाइप का कुछ है, ठीक है सर, यहाँ पे एन टाइप का कुछ है, तब भी मैं कहूँगा सर इसकी कम होगी। इससे मैं अगर कंपैरिजन करूँ यहाँ पे सर एन है और यहाँ पे एक फंक्शन है लॉग एन, ठीक है, तो कुछ टाइम लॉग एन ले रहा होगा और यहाँ पे एन टाइप का फंक्शन है, तो मैं क्या करूं इसको भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं। जब एन है सर मुझे पता है कि लॉग एन से तो एन बड़ा है, तो ये आपका जो फंक्शन है F5 वो आपका इंक्रीज कर रहा होगा, एन से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, पहले इनको कंपेरिजन करता हूँ सर। F1 और F2 को अगर मैं कंपेरिजन करूँ कि व्हाट इज द कहानी ऑफ F1 और F2, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। सो यू कैन राइट दिस इज लॉग एन, और यहाँ पे कहानी क्या है सर, दिस इज लॉग लॉग एन। अच्छा इसको समझने के लिए तो ऐसे भी समझ सकते हो, चलो मैं समझाता हूँ। अगर मैं लॉग एन को अभी बोल देता हूँ दैट इज योर एक्स, मैं इसकी जगह एक्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स, इस लॉग एन की जगह क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा। अगर इन दोनों में मुझे बताना है कि सर यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे log x है, तो आपको पता है अगर इसकी पावर 1 है तो इसको इसमें log आ गया है, तो इन दोनों में अगर मैं कंसीडर करूं तो किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ। x और log x में किसकी ग्रोथ ज्यादा है? x की ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि ये सर आपका यहाँ पे x की पावर 1 है और इसके आगे log लगा हुआ है, तो इसकी इसकी हमेशा आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी x की, तो वही मैं कंसीडर कर सकता हूँ। और आप क्या कंसीडर कर सकते हो सर, एक लॉग के आगे आपने क्या किया, एक लॉग और लगा दिया, मींस इसकी ग्रोथ और कम हो गई। जब मैं कह रहा हूँ लोग एक बार गिरा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 लोग आ गए जो गिराने के लिए, तो यहाँ पे जब दो लोग लॉग लग गए तो इसका मतलब इसकी ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो यू कैन से सर इन दोनों में आपकी ग्रोथ अगर मैं कंसीडर करूं तो F1 हैज द मोर ग्रोथ देन द F2, ठीक है। F2 की ग्रोथ आपकी क्या होगी, कम होगी F1 से,
ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ आ गई, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। ओके, यहाँ पे कंसीडर किया है, दैट इज मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया था कि log n इज इक्वल टू एक्स मैंने पुट किया है। ओके, ये मैंने फर्स्ट पार्ट रख दिया। और आपको ये कहानी पता है कि आप अगर log n है तो log n इज लेस देन n इज लेस देन n स्क्वायर। अगर इसके टर्म जैसे n स्क्वायर, n के n स्क्वायर n क्यूब, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, तो ये इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो एक चीज और सीखे आप लोगों ने, एक चीज और सीख ली कि सर n से छोटा log n है, अगर एक log और लगा दूं या दो log और लगा दूं log, तो ये इससे कम हो जाएगा। ये कहानी आ जाती है, इस तरीके की कहानी। अगर एक log और लगा देता हूं, log 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 n, तो वो इस वाले से भी कम हो जाएगी उसकी ग्रोथ। इज इट ओके? ये आपको समझ आ गया, ये कंसेप्ट बन गया आपका। जैसे log बढ़ाऊंगा तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगा, और कम होती जाएगी। इज इट ओके? दिस पार्ट इज ओके? हेलो, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। ओके, गुड Yes sir, yes sir. गुड। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो नाउ आई विल कंसीडर अगेन अदर थिंग। अब आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे n स्क्वायर है और इसमें n है, इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, f3 और f4। f3 और f4 को मैंने कंसीडर किया। सर एक जगह n स्क्वायर आ रहा है, कांस्टेंट कुछ भी आ रहा हो, आई एम नेग्लेक्टिंग दैट पार्ट। और f4 में क्या आ रहा है आपका n। तो मैं कहूंगा सर f3 की ग्रोथ ज्यादा होगी f4 से, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि स्क्वायर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर आपका ज्यादा है। इज इट ओके? दिस पार्ट इज ओके। f3 हैज द मोर ग्रोथ देन द n, मींस f4 मींस यहाँ पे केवल n है, कांस्टेंट जो भी आ रहा है वी आर नेग्लेक्टिंग। लास्ट केवल f5 मुझे चेक करना है। f5 में दो सिचुएशन मैंने डाल दी, आपका क्या दे दिया कि n भी दे दिया और log n भी दे दिया। अब यहाँ पे समझना 100n प्लस log n, और आपके बाकी के क्या थे, 3n स्क्वायर और 100n, 3n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था ये, 100n प्लस 20, 100n प्लस 20। ओके, देखो ये आपका था, जो भी है फंक्शन जो भी हो, देखो इसकी ग्रोथ तो n स्क्वायर है, तो सबसे ज्यादा तो इसकी ग्रोथ होनी ही है सर। अब मुझे कंसीडर करना है इन दोनों में कि सर इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी n का टर्म आ रहा है, n का टर्म आ रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट था, यहाँ पे एक log n का टर्म आ रहा है। तो यू कैन से सर ये कौन सा था, f5 था, ये f3 था, दिस इज f5, दिस इज f3 एंड दिस इज f4। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ f3 तो सबसे हाईएस्ट हो गया, आप लोगों ने समझ लोगे f3 इज द हाईएस्ट। और यहाँ पे आप लोगों ने समझा log n वाला जो भी फंक्शन था, log n वाला डबल जो फंक्शन था, ये f2 सबसे कम है और f1 उससे ज्यादा, तो f2 सबसे कम हो गया और f1 उससे ज्यादा हो गया। नाउ इन दोनों में कंसीडर करूं f4 और f1 में, सर यहाँ पे भी अगर मैं इस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करता हूं दैट इज ओके, n तो n यहाँ पे भी, बट यहाँ पे एक फंक्शन और है log n, मींस log n की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा होगा इस n का, और उसमें कुछ log n भी ऐड है, मींस इसमें कुछ ज्यादा टाइम लग रहा होगा f4 से। सो f5 हैज द मोर ग्रोथ देन द f4। ठीक है, क्योंकि उसमें दो फंक्शन है और एक फंक्शन n से n तो मैंने मान लिया। यहाँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट फंक्शन को जो n पर डिपेंडेंट है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, मींस it will take some time. Okay, so this is taking some time, so we can say sir f2 has the less, और यहाँ पे अच्छा इन दोनों में कंसीडर करूं तो यहाँ पे आ जाएगा f5 और यहाँ आ जाएगा f4। ओके, सो दिस विल बी योर सीरीज, मींस f3 n स्क्वायर का टर्म सबसे ज्यादा, f5 में आपका क्या था, n का टर्म था प्लस log n था, इसके पीछे आ गया, यहाँ पे आपका टर्म आ गया n का, यहाँ पे आपका आ गया log n वाला टर्म, और यहाँ पे आपका आ गया log n वाला टर्म। ओके, दिस विल बी माई सीरीज, कि जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से हमारा आगे बढ़ेगा। सो इस तरीके के अगर फंक्शन आपको मिलते हैं तो वहां पे यू कैन फाइंड द ग्रोथ, तो ग्रोथ फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट ओके? जस्ट टेल मी। हेलो, ओके, दैट इज कर ओके। सकते हैं sir. ओके, Yes, वेरी गुड। चलो अगर कर सकते हो तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को, तो आपको और मजा आएगा। सो वी कैन गो फॉर द वन मोर क्वेश्चन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, अब आपकी समझ में आ चुका है। ठीक है,
चलो तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, दैट f1 इज log n, और यहाँ पे मैं 10 भी कर देता हूँ, 10 log n, f2 इज इक्वल टू 200 log n। ओके, थर्ड में ले लेता हूँ, दैट इज अंडर रूट log n। फोर्थ ले लेता हूँ मैं, दैट इज 100n और log n। अच्छा, एक और ले लेता हूँ, n log n divided by 100। Okay, these are the 5 functions. So now you just tell me कि which function have the more growth and which function has the less growth. Okay, so series एक बनाओ। These are the 4 function, and according to that 4 functions you can tell me कि what will be the scenario. So last time पे अविरल और अनिकेत ने आंसर दिया था, that is okay. ओके, सो इस क्वेश्चन को भी अगर आप वहाँ आंसर कर सकते हो, चैट बॉक्स पे आंसर कर सकते हो। सो अटेम्प्ट, टेक योर टाइम एंड टेल मी, क्योंकि यही कहानी है। एक बार ये क्लियर हो गई, देन यू कैन अटेम्प्ट ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं एक लाइन में भी आपको सिखा सकता था, केवल एक। मोस्ट ऑफ द पीपीटी क्या होता है, अगर आप यूट्यूब पे कहीं चेक करोगे तो एक दो एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं लेते, वो एक सीरीज दिखा देते हैं कि दिस इज योर सीरीज एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस लाइक दिस। बट आई एम टेकिंग मोर questions so you can realize the things ki what is going on with these functions, how can we find the growth, and how can we realize the time complexity after that. So any answer from your side till now? सर आई थिंक सबसे कम होगा F3। सबसे कम बोल रहे हो, पहले F3 ठीक है, F3 then F2, then F2 फिर F1 F1 और फिर F4 और F5 दोनों सेम ही है सर। F4 एंड F5, इसके बाद F4 और F5 का सेम है। ओके, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू आर सेइंग, इज इट ओके? सर F5 को थोड़ा पहले कर दीजिए F4 के। अच्छा अच्छा, ठीक है, मीन्स यू आर सेइंग सर दिस इज द थिंग। ओके, F4 एंड F5। ओके, दिस इज नॉट द x, समटाइम मेरे n और x में आप लोग कंफ्यूज होंगे, बट दिस इज योर n ऑल द टाइम। मोस्ट x में बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ठीक है? सो रिमेंबर दिस थिंग कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, कहीं बच्चे x ना समझ लें, बट दिस इज n, सो ऑल द टाइम यू कैन कंसीडर दैट इज n, इस तरीके का अगर लिखा हुआ है कुछ, क्योंकि x समटाइम्स कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? तो वो n और x में डिफरेंस करना टफ हो जाता है, तो n में थोड़ा इस तरीके से, x में इस तरीके से। ओके, so you are saying sir this is a series, so I just want to say just go for this one कि इन दोनों को एक बार रियलाइज और करो, कि just go and realize this part, F3 और F2 को एक बार रियलाइज और करो, which one is means greater और which one is F2 और F3 को, इन दोनों को। चलो मैं स्टार्ट करूं, मैं आंसर बताऊं और बच्चे अभी नहीं बता रहे तो चलो पहले मैं स्टार्ट करता हूं F1 और F2 की कहानी। ओके, हेलो सर, हाँ बेटा बताओ। मुझे चैट बॉक्स में भेज दिया। अच्छा, चैट बॉक्स में भेजा, ओके सॉरी। चैट बॉक्स यार अपडेट नहीं हो रहा अभी इसमें, यहाँ पे चेक करता हूँ। ओके, मोबाइल पे F5 F3 मीन्स F2 F3, आप इसको बता रहे हैं कि सर F2 और F3, और तो सेम ही बता रहे हो लगभग, ठीक है?
तो आपने बताया कि सर F2 और F3 में इसका अपोजिट वाला रिलेशन होगा, यही बता रहे हो ना सर, F2 यहाँ आएगा और F3 यहाँ आएगा। ओके चलो कोई नहीं, वी विल चेक दिस पार्ट कि आपका क्या आंसर हो सकता है। ओके अभी मैं इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सर फर्स्ट वी विल रियलाइज, सर इतना मुझे पता है कि देखो कांस्टेंट को मैं ले नहीं रहा सर, मैं कांस्टेंट को अभी नेगलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी। अगर F1 और F2 में मैं रियलाइज करूँ तो कौन सा होगा, यहाँ पे आपका क्या है, लॉग है, तो ऑब्वियस है कि F1 इससे बड़ा होगा। मीन्स पहली कहानी तो हमने 1 और 2 में देख लिया। ठीक सर, अब मैं इसकी कहानी देखूं सर, मुझे अभी तक ये वाला नई चीज मिली है, अंडर रूट लॉग एक्स वाली एक नई चीज मिली है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं पहले करता हूँ F1 और F3 के बीच में रिलेशन देखता हूँ कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन F1 और F3 को, किसका ग्रोथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, लॉग एक्स, मैं अभी फिर से कांस्टेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज लॉग एन, सॉरी लॉग एक्स नहीं, दिस इज लॉग एन एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अंडर रूट लॉग एन। तो सर ने अभी मुझे बताया था कि मैं लॉग एन को कंसीडर कर सकता हूँ एज ए एक्स। चलो मैं क्या मान लेता हूँ, ये एज ए एक्स में कंसीडर अगर कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर अंडर रूट एक्स। नाउ आई कैन पुट द वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू चलो यहाँ पे रखता हूँ 1, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अगर ये F1 का आंसर है देन वी विल 1, यहाँ पे भी आपका 1 आएगा आंसर। अब मैं वाले ही लूंगा, उसके बाद मैं 4 रख देता हूँ, अगर तो 4 की वैल्यू x पे 4 आएगी, बट यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं रख देता हूँ 9 का वैल्यू यहाँ पे 9 मिलेगा F1 में, क्योंकि यहाँ x वैल्यू से कंसीडर कर रहा हूँ, इसको देखो केवल, अभी लॉग को मत देखो, इसको इस पार्ट को देखो। अगर मैं 9 तो ये 9 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी तरीके 16 रखता हूँ तो यहाँ तो 16 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इस तरीके से अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो ऑब्वियस है कि F1 का ग्रोथ में ज्यादा होगा, F3 का ग्रोथ आपका तेज नहीं हो रहा है जितना तेज आपका F1 का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्रोथ ज्यादा तेज हो रहा है, इसका ग्रोथ कम तेज हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन से F1 विल बी ग्रेटर देन F3। इज इट ओके? ये समझ आ गया? इज इट ओके दिस पार्ट? यस हेलो, F1 क्या है आपका, केवल log x है, और अंडर रूट log x और log x में किसका ग्रोथ ज्यादा होगा, ऑलवेज log x का ग्रोथ, log n का ग्रोथ ज्यादा होगा अंडर रूट log n से। सो दिस इज द स्टोरी। ये आपकी कहानी समझ आ गई है? इज इट ओके? ये बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। हेलो, यस ओके, नाउ वी विल कंसीडर F2 और F3 कि मैं सर F2 और F3 को भी चेक करके बताइए इस तरीके से। F2 क्या था आपका, log n, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट log n। फिर से मैं वही करता हूँ कि सर log n को आप x मान लेते हो, ठीक है, मैंने भी मान लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, यहाँ पे तो log x आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा। अब कुछ x की वैल्यू रख के देख लेता हूँ कि x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू अगर 1 पुट 2 से करता हूँ स्टार्ट, या फिर मैं 4 से कर लेता हूँ क्योंकि मैं स्क्वायर भी लेना चाहता हूँ, तो जस्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 4। x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, ये बेस 2 ही है अभी, ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट वैल्यू मैं रख लेता हूँ, आप रख सकते हो 16। 16 पे आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 टू दी पावर कितना होता है ये, 2 टू दी पावर 4। ओके, सो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे भी वैल्यू आपकी आ रही है 4, ठीक है। उसके बाद 32 पे आपका क्या होगा, अब चलो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। 32 पे यहाँ पे कहानी देखो, यहाँ पे आपकी कहानी क्या होगा, 32 पे इट विल बी 5, और 32 अगर मैं अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 32 निकालूं तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। मीन्स आप इन दोनों को चेक करोगे तो इसकी वैल्यू 5.8 के आसपास आ रही होगी, मीन्स थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होगी इसकी वैल्यू, रूट एक्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी इससे। अगर यहीं पे मैं करता हूँ, इसके बाद 64 रख लेता हूँ, ठीक है, फिर से सेम वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक नहीं, यहाँ पे आ जाएगी 8, 2 टू द पावर 8 होता है ये, 32 तो रख चुका, 32 के बाद 64 रखा हूँ, इज इट ओके? 6 ही आएगा शायद आपका से। 16 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, ओके, और ये आपका 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, और क्यों 2 टू द पावर 6 आपका कितना होता है 64, और यहाँ पे आएगा 8। ओके, इसके बाद आप लोग रखो इसके बाद आप रखना चाहते हो कुछ वैल्यूज और बढ़ा लो,
यहाँ देखो, यहाँ तक तो ये सेम था। आफ्टर दैट कुछ वैल्यू के बाद में जैसे ये ग्रोथ करने लगा, रूट एक्स ग्रोथ करने लगा मोर, और ये आपका उससे स्लो है, मीन्स रूट एक्स का ज्यादा ग्रोथ हो रहा है और लॉग एक्स का कम ग्रोथ हो रहा है। मीन्स यू कैन से सर अंडर रूट लॉग एन का ग्रोथ ज्यादा होगा लॉग एन से। ओके, इज इट ओके? दिस पार्ट इज ओके टू यू? आपने कुछ वैल्यू रखी और उसके हिसाब से आपने अंदाजा किया, क्योंकि वी विल रियलाइज एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो रहा होगा। कुछ वैल्यूज के बाद में अंडर रूट एक्स का ग्रोथ आपका इंक्रीज कर गया, दैट इज द मोर ग्रोथ देन द लॉग एक्स। ओके, अंडर रूट एक्स का ग्रोथ ज्यादा है देन द लॉग एक्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि आप इस पार्ट को बोल सकते हो कि सर अब क्या कहानी हो रही है। हाँ, अब क्या कहानी हो रही है, कहाँ गए कि ये दोनों कौन से फंक्शन थे कि f3 का जो ग्रोथ है वो ज्यादा है f2 से। दिस इज द स्टोरी ना, यही निकला ना आंसर? हेलो, प्लीज टेल मी, दिस इज द आंसर। f2 का ग्रोथ आया f3 से ज्यादा। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था वहीं चला जाता हूँ। आपका किस तरीके से आ रहा है, f2 का ग्रोथ आपने निकाला, f2 का ग्रोथ लास्ट में क्या कंक्लूजन था, f2 का ग्रोथ कम है f3 से। f2 का ग्रोथ कम है f3 से, ठीक है। और f3 का ग्रोथ अभी निकाला, f1 भी आपका क्या है, f1 का ग्रोथ ज्यादा है f2 से, ठीक है। और f1 का ग्रोथ ज्यादा आया था f3 से भी, तो f1 आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या स्टोरी है, देखो दोनों में अगर मैं कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दूं, यहाँ पे कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करता हूँ, तो दीज आर द सिमिलर थिंग, मीन्स आपका सेम फंक्शन लगा हुआ है। और देखो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एन, यहाँ पे एन आ चुका है, अगर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग एन का, ठीक है, तो लॉग एन में एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक पावर तो एन की है ही, ठीक है। तो ऑलवेज आपके log n से तो ज्यादा ही होगा अगर n की पावर 1 यहाँ पे है, तो ये दोनों f4 और f5 का इक्वल हो जाएगा। तो आपका सीरीज कुछ इस तरीके से जनरेट होके आएगा ग्रोथ का। तो f2 विल बी लेसर देन द f3 लेसर देन द f1, ठीक है। तो अब आपको अंडर रूट लॉग एन भी मिलता है, तो आप लोग निकाल सकते हो कि व्हाट विल बी द स्टोरी, कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, पहले निकाल लो, फिर एन की जो वैल्यूज है उन पे आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि क्या स्टोरी निकल के आएगी। इज इट ओके? ये समझ आया या फिर समझाऊं? हेलो, बताओ बेटा। सर एक बार F5 थोड़ा समझा दीजिएगा। F5 और F4 को किसे? हाँ। अच्छा, चलो F5 और F4 को ले लेता हूँ। आपका स्टोरी क्या था, 100 n log n इस तरीके का, और एक था आपका n log n बाई 100, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा है कि देखो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन हो जब आपको करना है, तो कांस्टेंट को हम लोग नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमने इस कांस्टेंट को जो भी हो, यहाँ पे 1000 लिखा हो, 1 लाख लिखा हो, वॉट हमने कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ द फंक्शन इज सेम, एन लॉग एन, ठीक है, ये फंक्शन है। अभी देखो अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं, इस फंक्शन को कंपैरिजन करूं लॉग एन से, तो आप देख रहे हो एक n मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो इस log n की वैल्यू कभी आती है 1, तो इस n की वैल्यू कुछ तो होगी, और 1 से 0 से ज़्यादा ही होती है, तो हमेशा इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, log n से तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा ही होने वाली है। तो ऑलवेज n log n की ग्रोथ जो है वो आपकी log n की ग्रोथ से तो ज़्यादा ही होगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो रहा है, n की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स you can multiply these thing, means the growth of this function will be greater than this function। तो इसके हिसाब से मैंने पिछले आंसर कर दिए। और ये दोनों फंक्शन एक्चुअली क्या हुआ, f4 और f5 फंक्शन निकालने के बाद इन दोनों फंक्शन को सेम नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन विल बी सेम। मैं हमेशा क्या बात कर रहा हूँ, द फंक्शन इज नॉट द सेम बट द growth of the function will same because we are neglecting the constant। okay, growth of the function will be same। that is okay? is it okay बेटा? हेलो हाँ, सर। यस, तो मुझे एक डाउट है, हाँ हाँ अगर हम पूछो। कोई नंबर को लॉग में हाँ हाँ, डिवाइड करते हैं तो सर वो तो कुछ ना कुछ तो सर कम हो गई ना सर, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे। सर इस ऐसा वाले तो नहीं पार्ट के बोल लिए बोल सकते रहे हो? सर F4 की नहीं, ग्रोथ अगर ज्यादा है आपको डाउट हो रहा है, इफ यू आर मीन्स कुछ भी डाउट हो रहा है, इन दोनों में अगर डाउट हो रहा है log n और n log n में, तो यू कैन डू वन थिंग
कि सर एक फंक्शन है मेरा n log n और एक फंक्शन है केवल log n। मैं n की कुछ वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ और वहां से मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा कि व्हाट शुड बी द आंसर। यहाँ पे log बेस 2 ले लिया, ठीक है, मैं 2 डाला, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा और मल्टीप्लाई किससे, n से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। फिर मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 2, ठीक है, log बेस 2 4 आपका आंसर आ जाएगा 2। हेलो, और यहाँ पे Yes, sir. आंसर क्या होगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8। यहाँ पे मैं 16 ले लिया, 2 टू द पावर 4, तो यहाँ 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 4 मल्टीप्लाई 16 दैट इज जो भी कितना आ जाएगा, 64। इज इट ओके, 64। तो देखो ग्रोथ ऑफ द फंक्शन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात कर रहे होंगे। तो इफ यू विल चेक दिस पार्ट, सो यू कैन से सर log n की ग्रोथ कम है और n log n की ग्रोथ ज्यादा है। सो अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है किसी भी दो फंक्शंस में, देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज कि किसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है और कुछ वैल्यूज डाल के देखो, कुछ वैल्यू तो हो सकता है कम ज्यादा हो रहा हो, बट वी विल रियलाइज दिस थिंग एट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कि इनफाइनाइट के आसपास जाके वैल्यूज में क्या हो रहा होगा। तो यू विल रियलाइज दिस पार्ट कि किस तरीके की सिचुएशन आ रही होगी। इज इट ओके, दिस पार्ट इज ओके? हेलो सर, या आस्क मी। F4 और F5 में दोनों में सर n log n तो सर कॉमन ही है ना सर? किसमें, दोनों में सर F4 n log F4 और F5 में ना? दोनों में n log n है सर। हाँ, तो तो मैंने सर मैं वही ये कहा ना, तो एक दोनों में की से अगर ग्रोथ हम को, हाँ हाँ, एक में अगर हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से तो उसकी वैल्यू तो सर हमेशा मैं, कम होगी ना हाँ सर? हाँ हाँ हाँ, देखो वो चीज है, लेकिन बट एवरी टाइम आई, देखो एट एन, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग अभी भी वहीं फंसे हो फंक्शन में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ इस चीज को, मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग दिस थिंग एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मैं फंक्शन की वैल्यू को नहीं निकाल रहा, आई एम नॉट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए मैंने कांस्टेंट को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट फाइंडिंग द, बिकॉज आई एम अप्रोक्सीमेटिंग द थिंग। मैं एग्जैक्ट वैल्यू अगर मुझे निकालनी होती मैं लॉग वाला कैलकुलेटर पकड़ा देता आपको और वहां से एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करने को कहता, बट वी आर नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द थिंग कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा सिस्टम में, ठीक है। और वो सिस्टम में चेक कहाँ करूंगा, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, कि इनफाइनाइट पे वो सिस्टम क्या बता रहा होगा कि किस फंक्शन का ग्रोथ ज्यादा है, किस फंक्शन का ग्रोथ कम है। वैल्यू इवन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कम मिलती जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू कम मिलती जाएगी, बट जब मैं बात करूंगा व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, तो ग्रोथ ऑफ द फंक्शन सेम होगा, ठीक है। जिस तरीके से ये बढ़ रहा होगा उसी तरीके से ये बढ़ रहा होगा, ठीक, ग्रोथ ऑफ द फंक्शन सेम होगा, मे बी वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है। और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसको हम लोग बोलेंगे कि द ग्रोथ ऑफ द फंक्शन विल बी सेम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि एवरी टाइम जस्ट यू विल नेग्लेक्ट द कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप लोग ये मान के चलो कि इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम कहाँ रियलाइज कर रहे हैं अपने सिस्टम को, एट द टाइम ऑफ द इनफाइनाइट। एट द टाइम ऑफ द इनफाइनाइट वी विल सी दिस फंक्शन। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द सिनेरियो। ओके बेटा, इज इट ओके? चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ, इजी एग्जांपल लेता हूँ। दैट क्वेश्चन, that is f1 is equal to 20n, okay, f2 is equal to 2n square plus 30n plus 1, and third is मैं ले लेता हूँ कुछ भी 20n square या 200n square. Okay, this is your three functions. Then you just tell me the growth of the function. Okay, so arrange these function in the growth of the function. So what will be the scenario? आवाज कट के आ रही है बेटा थोड़ी सी, so f2 will be more than F2, F3, f2 f3 f1, आप ये बता रहे हो, ठीक है। चलो इसमें मैं आपको और फंडा बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, ठीक। लास्ट वाले क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे होगे कि सर यहाँ पे लॉग एन था, इसको भी मैं आप लोगों को और समझा देता हूँ, ठीक है। चलो नाउ दिस विल बी लाइक दिस। देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है, अगर मैं कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दूं, सर आपने अभी तक कहा है कि यू कैन रिमूव द कांस्टेंट। ओके, सो कांस्टेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी तक आप लोग एक चीज सीखिए हो
just ignore the constant. ओके ये चीज सीख गए हो। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, n हो गया सर, f1 आपका n के इक्वल हो गया। सेकंड फंक्शन अभी के लिए आपका क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस n हो गया। थर्ड आपका क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। तो सर अब मुझे ये पता है कि सर n इज लेस देन n स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे n और आ रहा है। तो एक चीज आपको और सिखाता हूँ, इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल अकर देन व्हाट विल यू डू, यू विल ऑल्सो इग्नोर और यू कैन से सर ड्रॉप the lower order term, drop the lower order term. First ignore the constant, second drop the lower order term. अब lower order term इस फंक्शन में देखो, ये पावर सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, n स्क्वायर है, तो इससे छोटी वाले पावर को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। मीन्स आई कैन से सर f1 इज n, f2 इज n स्क्वायर एंड f3 इज n स्क्वायर अगेन। Okay, n square. So I can say, sir, f1 is less than f2, that is equal to f3. The situation will be like this. So remember these two things. और लास्ट वाले में मैंने जैसे बता दिया था आपको कि जो प्लस मैंने ले लिया था log n आपको मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया था कि ये दिस इज द सिचुएशन log n। इस टाइम भी आप क्या कर सकते हो, दैट आई विल इग्नोर दिस log n। सर आई कैन इग्नोर दिस log n और यहाँ पे मैं इक्वल भी ले सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू f4 एंड f5 इज इक्वल लेस देन f3। यहाँ तो n स्क्वायर है, ये तो मुझे पता है। यहाँ पे इफ आई विल इग्नोर, सो इग्नोर द और ड्रॉप द लोअर ऑर्डर टर्म, इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म। So that is the situation. So two things you have to remember: ignore the constant to finding out the growth of the function and drop the lower order term. किसी फंक्शन में अगर इस तरीके से लिखा हो, जैसे इस फंक्शन में ऐसा था, अगर कोई फंक्शन होता आपके पास इस तरीके से n क्यूब प्लस 30n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1, so finding the growth of that function, you will ignore these constant, okay, these constant. After that you will also ignore this lower order term, means the growth of the function will be like n cube only. Okay, so you will realize that is function will increase like n cube. Okay, according to that you can answer the question, whatever the question is given to you. So remember the two things, that ignore the constant and drop the lower order term, because we are realizing all the things at n is equal to infinite. That is, we are approximating the things, that's why I am saying this is the analysis of asymptotic analysis. Okay, that's why I am saying this is your asymptotic analysis. So this is not the exact mathematics. This is, we are approximating the things. That's why I am doing this thing. So I am ignoring the constant. I am dropping the lower order term. So you will remember this part. Is it okay to you? जल्दी से बताओ बेटा. Yes sir. Okay. So I think today's time has over. 1 घंटा हो गया क्या? इतना ही है ना? टाइम हो गया ना? यस सर, दूसरी क्लास का मेल भी आ गया। अच्छा, मेल भी आ गया। ओके। तो मैं स्टॉप करता हूँ, नहीं तो मैं क्या तो और अगली क्लास में एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सो अब मैं बेनेट पहुँच के ही आपके साथ मिलूंगा, तो स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।